નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આઇકોન ન્યૂઝમાં હું અમીષા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સૌપ્રથમ જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર। આવનાર વર્ષ માટે મતદાર યાદીની સંક્ષિપ્ત સુધારણા કાર્યક્રમ તથા સૂચનાઓ જાહેર કરતું જિલ્લા ચૂંટણી તંત્ર। વલ્લભ વિદ્યાનગર એનસીસી ગ્રુપ દ્વારા નેશનલ ફર્સ્ટ કેડેટ અંતર્ગત યુવાનો માટે યોજાયો કારકિર્દીલક્ષી કાર્યક્રમ। હવે વધુ સમાચાર જોઈએ વિગતવાર। આણંદ જિલ્લા કલેક્ટર, સર્વે જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીઓ તથા મતદાર નોંધણી અધિકારીઓ દ્વારા ભેગા મળી આવનાર વર્ષની 1 જાન્યુઆરી 2015ની લાયકાતની તારીખના સંદર્ભમાં મતદાર યાદીની ખાસ સંક્ષિપ્ત સુધારણા કાર્યક્રમ તથા સૂચનાઓ વિશે આમ જનતા માટે કેટલીક માહિતી આપવામાં આવી હતી। અપાયેલ માહિતીના સંદર્ભમાં જણાવાયું હતું કે આવનાર 1 જાન્યુઆરી 2015ના સંદર્ભમાં ફોટોવાળી મતદાર યાદીની સુધારણા કાર્યક્રમ અંતર્ગત આવનાર તારીખ 19 ઓક્ટોબર 2014 તથા અન્ય તારીખ 2 નવેમ્બર 2014 રવિવારના રોજ એક ખાસ અભિયાન યોજવામાં આવેલ છે કે જ્યારે નક્કી કરાયેલ સ્થળો પર જે તે સ્થળના બૂથ લેવલ ઓફિસરો સવારના 9 કલાકથી સાંજના 6 કલાક સુધી કાર્યરત રહેશે। માટે જો કોઈ પણ નાગરિકને પોતાના મતદાર ઓળખપત્રને લઈને કોઈ સુધારા વધારા કરાવવાના હોય તો આ દિવસોમાં કરાવી શકાશે। પછી ખાસ ઝુંબેશ જેમ કીધું 19/10/2011 તે દિવસે ખાસ ઝુંબેશ કરીને ખૂબ વધારે રજીસ્ટ્રેશન થાય 9 થી 6। અત્યારે કોઈ આવું હોય તો ક્યાં આવવાનું? મામલતદાર ઓફિસ ડેડિકેટેડ ઓફિસર તરીકે એમાં 6 નંબરનું ફોર્મ લઈને આવી શકશે। 6 નંબરનું ફોર્મ અહીંયા ભરી દેવાય ને? યસ। અને સાથે શું લાવવાનું? જે તે વિધાન છે, દાખલા તરીકે ખંભાતનો મતદાર હોય તો ખંભાત જ ભરે, બાકી અમારી જરૂર નથી। જી, ધારો કે આણંદ રૂરલમાં હોય તો આણંદ પ્રાંત અને આણંદ ગ્રામ્ય મતદાર આવે પાસે અને શું લાવવાનું? એટલે 6 નંબરના પુરાવા માટે ફક્ત 18 વર્ષની ઉંમરમાં એલસી અથવા જન્મનું પ્રમાણપત્ર જન્મનું પ્રમાણપત્ર જોયું કે પછી 18 થી 21 વર્ષ જો થતી હોય 1/1/2015 એ તો જોઈશે। પણ 85 વર્ષના હોય તો એની જરૂર નથી। 25 વર્ષના હોય તો થાય? હા, તો કંઈ જરૂર નહીં। એનું ક્યાં હતું આગળ એ નામ જોવું પડશે ખાલી એલસી। હા, અને ભાગ નંબર 4 નો સ્પષ્ટ કરવાનો છે। ફોર્મ નંબર 6 ના ભાગ 4 એટલે ત્યાં કોઈ રીતે એટલે એટલા ભરવાનું છે મારું આ જગ્યાએ ચાલુ હતું અથવા ના। ઓકે, ક્યાં ચાલુ હોય તો એટલા ભરે એટલા લઈ જશે, એટલા ભરે એટલા આવી જાય। અને ઈઆરઓની પાવર છે મતદાર નોંધણી અધિકારી। આ સાથે તારીખ 15 ઓક્ટોબરથી તારીખ 10 નવેમ્બર સુધી મતદાર યાદી સંબંધિત કોઈ પણ માહિતી જિલ્લા કક્ષાના હેલ્પલાઇન નંબર 02692 260 123 પરથી મેળવી શકાશે, જેનો સમય સવારના 10:30 કલાકથી સાંજના 6 વાગ્યા સુધીનો રહેશે। બ્યુરો રિપોર્ટ, આઇકોન ન્યૂઝ, આણંદ। સરદાર પટેલ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ સ્થાને વલ્લભ વિદ્યાનગર એનસીસી ગ્રુપ દ્વારા નેશનલ ફર્સ્ટ કેડેટ અંતર્ગત યુવાનોને શક્તિ અને કારકિર્દી માટે માર્ગદર્શન આપતો કાર્યક્રમ યોજાઈ ગયો। આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાતના ડાયરેક્ટર મેજર જનરલ દિલાવરસિંહ તથા ટ્રસ્ટના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી મંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ સાથે અન્ય મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ કાર્યક્રમના હેતુને સિદ્ધ કરવા કર્નલ પ્રેમચંદ તથા કર્નલ યાદવ દ્વારા કેડેટ્સને પ્રોત્સાહન અપાયું હતું। बच्चों को समझाया कि आर्मी में कैसे जा सकते हैं, अफसर कैसे बन सकते हैं, एयरफोर्स में अफसर कैसे बन सकते हैं, आईएएस अफसर कैसे बन सकते हैं, आईपीएस अफसर कैसे बन सकते हैं, क्या पढ़ाई करनी है, कैसे फॉर्म करना है, कैसे तैयारी करनी है। तो उसी की तर्ज के ऊपर हमने यहाँ पर भी प्रोग्राम करना था। आज का ये प्रोग्राम छोटा है,
सही मार्गदर्शन प्राप्त हो, जिससे आप जीवन के अंदर अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसके अनुसार जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें पूरी तरक्की आप प्राप्त कर सकें। આ કાર્યક્રમમાં વિજય થર્ગીય સર તથા પીએસઆઈ કેએસ દવેએ કેડેટ્સને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું. આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું સફળ સંચાલન મેજર પ્રતીક્ષા પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. अधिकारीगण, उपस्थित पीएसआई से दवे साहब, कॉलेज के प्राध्यापक और आचार्य मित्रगण एवं अन्य सभी एनसीसी के कैडेट, आज स्पीकर के रूप में मैं यहाँ आपके सामने आया हूँ। हमें सफलता मिलेगी। तो विजय सर ने बहुत अच्छी बात बताई। अब मैं पीएसआई केएस दवे सर का अनुरोध करती हूँ कि वो भी अपने ज्ञान से आप लोगों को लाभान्वित करें। किसी को बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी तरफ से एनसीसी के जो बच्चे हैं और जो दूसरे बच्चे हैं उनके एम्पावरमेंट और कैरियर के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। ये अपने आप में बहुत ही अनोखा और बेहद ही आगे कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा एक सेमिनार है। साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद एक एनसीसी कैडेट रह चुका हूँ। मैं एनसीसी सर्टिफिकेट यूथ कैडेट बटालियन फर्स्ट रह चुका हूँ और आगे जो भी हूँ और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मेरी नींव में एनसीसी मेरा जो भी डिसिप्लिन है या मेरे साथ और मेरे ब्रदर ऑफिसर जो भी हैं उनसे मैं आज अलग दिखता हूँ। सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, जो भी मेरे कलीग्स हैं, ब्रदर ऑफिसर उससे मैं अलग दिखता हूँ क्योंकि मुझे एनसीसी की डिसिप्लिन मेरी नींव में पड़ी हुई है। तो मैं इस तरह से भी एनसीसी का बहुत बड़ा आभारी हूँ। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जब आप एनसीसी ज्वाइन करते हो तो स्वाभाविक तौर पे आपका जो कैरियर बनाने का नजरिया है वो डिफेंस या पुलिस की फोर्स ज्वाइन करने का होता है। तो उसी बात को लक्ष्य में रखते हुए मैं आपको थोड़ी बातें बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो गुजराती लड़के होते हैं और एनसीसी के ज्वाइन करते हैं तो सर उसके अंदर सब लोगों का मेंटालिटी होती है कि मैं गुजरात ना छोड़ूँ और मुझे सबसे पहले गवर्नमेंट की जॉब है। गवर्नमेंट की जॉब ना मिलने के बाद वो तय करता है कि मैं अपना कैरियर और एजुकेशन स्किल से मैं कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करूँ। ये मानसिकता आज से नहीं बहुत सालों से चली आ रही है और ज़्यादातर 90% बच्चे जो है वो गुजरात के अंदर ही गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब पसंद करते हैं। आज की जो कॉन्फ्रेंस है हमने आपको ये बताना चाहते हैं कि आम तौर पे ये सोचा जाता था कि जो गुजरात की युवा है वो कहीं शारीरिक रूप से या फिजिकल एक्टिविटीज़ में बाकी स्टेट से कुछ कम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली जो हमारे कंपटीशन हुए हैं उसके अंदर जो सबसे मुश्किल कंपटीशन है ऑब्स्टिकल रेस, उसके अंदर हमारा गुजरात पूरे देश के अंदर फर्स्ट आया है। इसी तरह से थल सैनिक कंपटीशन ऑल इंडिया एनसीसी थल सैनिक कंपटीशन के अंदर सेकंड आया है। आपको ये भी याद होगा कि मैराथन के अंदर गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल गुजरात ने लिया। आपको ये भी याद होगा कि पंजाब को हॉकी के अंदर गुजरात ने हराया। आपको ये भी याद होगा कि शूटिंग के अंदर हमारा तीसरा स्थान रहा, एथलेटिक्स में तीसरा स्थान रहा, हॉकी फुटबॉल कबड्डी में बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा। और इसी के साथ साथ माउंट क्षितिधर के ऊपर हमारी लड़की जो है क्लाइंब करके आई सक्सेसफुली। बैले के अंदर हमारा नेशनल फर्स्ट रहे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सभी स्पोर्ट्स के अंदर, जैसे नेवी का रिगेटा था, रिगेटा में 6 गोल्ड मेडल थे, 6 में से 6 हमारे गुजरात ने लिए। तो हर एक प्रकार के कंपटीशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे ट्रेनिंग हो, और चाहे एडवेंचर है या कल्चरल है, डांस, बैले डांस जैसी चीज़ें, सब में हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं। जबकि इससे पहले हम बॉटम से, नीचे से तीसरे चौथे नंबर पे आते थे, तो बहुत ज़्यादा तब्दीली है। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हमारा जो नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट का प्रोग्राम है उसमें हम करीब 1 लाख बच्चों को प्रेरित कर चुके हैं और करीब 1 लाख और बच्चों को विदिन 1 वीक हम प्रोग्राम में जोड़ने जा रहे हैं।
तो इस तरह से ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले 1.5 साल के अंदर एनसीसी के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। और यहाँ तक कि पहले लोग बोलते थे कि लश्कर में अपने गुजरात के लोग कम जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लश्कर में अफसर बनने के लिए 700% यानी 700% वृद्धि इस साल हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये आपके द्वारा युवाओं को सूचित करना चाहता हूँ, बाकी गुजरात की जनता को सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे गुजरात की युवा बहुत ज़्यादा क्षमता रखती है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और बहुत ज़्यादा अपने सही गोल को प्राप्त करने के लिए काम कर रही है। ऐसा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम गुजरात में किसी से पीछे हैं। गुजरात जिस प्रकार से बाकी चीज़ों में सबसे आगे रहा है, मेरे को उम्मीद है और विश्वास है कि युवा के सारे कॉम्पिटिशन के अंदर भी गुजरात सबसे आगे रहेगा। और ये सोचते थे कि बाकी वाले जो स्टेट्स के बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं, तो लेकिन अभी हमारे बच्चों ने प्रूव किया कि वो किसी से कम नहीं है। ऑब्स्टेकल्स जो है ना सिर्फ सिंपल रेस है बल्कि उसमें बीच में ऑब्स्टेकल्स है। उसमें गड्ढा भी है, बड़ा वाला डिच जिसको बोलते हैं 9 फीट डिच, उसमें 6 फीट बॉल भी है और उसमें जिगजैग ऑब्स्टेकल्स भी हैं, बाकी भी हैं जो बच्चों को पूरे इक्विपमेंट के साथ पार करना होता है। तो इस तरह की कार्रवाई में अगर हमारे बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन लिया है, इसका मतलब फिजिकली या मेंटली या सोच के हिसाब से कहीं भी कम नहीं है किसी से, और अपना स्थान बनाने में सक्षम है। और थर्ड सैनिक कंपटीशन जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपटीशन है, जो कि पूरी आर्मी की जो ट्रेनिंग रहती है उससे रिलेटेड टाइप का कंपटीशन रहता है। इसमें काफ़ी चीज़ें रहती हैं, जिसमें रिटन टेस्ट भी रहता है, हेल्थ एंड हाइजीन भी रहता है, जजिंग डिस्टेंस भी रहता है, नेविगेशन भी रहता है, शूटिंग भी रहता है, ऑब्स्टेकल्स भी रहते हैं। तो इस तरह से इसका कंपोजिशन काफ़ी चीज़ों को मिला करके कंपटीशन बनता है। और इसके अंदर हमारे को उम्मीद ये थी कि हम फर्स्ट आ जाएंगे। छोटी सी किसी कमी के कारण एक बच्चा थोड़ा सा कहीं लड़खड़ा गया, ऑब्स्टेकल में थोड़ा कुछ नंबर कम आया, वरना पक्की बात है इस बार हम ओवरऑल भी फर्स्ट ही आना था। और मेरे को पक्का उम्मीद है कि अगले साल हम फर्स्ट आने के प्रयास करेंगे। और जबकि आपको ये भी पता होगा शायद कि पिछले कुछ 20-30 सालों में हमारी पोजीशन गुजरात की कहाँ थी? नीचे से तीसरे चौथे स्थान पे थी, नीचे से तीसरे चौथे स्थान पे थी बाकी स्टेटों के मुकाबले में। लेकिन अभी पहला दूसरा स्थान आना बड़े महत्व की बात है। तो इस तरह से जो हमारे ये हुए थल सैनिक कंपटीशन हुए, तो इसमें बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था। इसके अलावा जो है आपको जान के खुशी होगी कि पिछले साल जो हमारे खेल हुए थे, पिछले साल के खेलों में मैराथन में जबकि हम सोचते हैं कि गुजराती बच्चे दौड़ते नहीं भागते दिखते नहीं, सवेरे शाम को बाकी स्टेट में तो अगर आप जाएंगे तो सवेरे 4 बजे लोग दौड़ रहे होते हैं, है ना, शाम को लोग दौड़ रहे होते हैं। यहाँ हमने इसे देखा नहीं। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि गोल्ड मेडल यानी कि जो सबसे पहला बच्चा आया वो गुजरात का था, जो सेकंड बच्चा आया सिल्वर मेडल वो भी गुजरात का था, चौथा आया वो भी गुजरात का, छठा आया वो भी गुजरात का। 4 बच्चों की टीम होती है। ऑल इंडिया के सारे स्टेटों के बच्चे दौड़ रहे थे, ऑल इंडिया के सारे स्टेटों के बच्चे दौड़ रहे थे। उसके अंदर 4 बच्चों की टीम थी और पहला, दूसरा, चौथा और छठा स्थान हमारे बच्चों ने लिया। इसके अंदर 6 गोल्ड मेडल रहते हैं। 6 गोल्ड मेडल में से गुजरात ने कितने लिए? कोई अंदाजा? 3 या 4? 6 के 6 गोल्ड मेडल जो है गुजरात के एनसीसी गुजरात लेकर के आए। थल सैनिक कंपटीशन में 3 मेडल लिए, वायु सैनिक में 3 मेडल लिए, नौ सैनिक में 3 मेडल लिए। यानी कि एयरफोर्स रिलेटेड ट्रेनिंग में भी, नेवल रिलेटेड ट्रेनिंग में भी और आर्मी रिलेटेड ट्रेनिंग के अंदर भी सब जगह में हमारे बच्चों ने मेडल लिए। इसके अलावा शूटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों ने मेडल लिए और हम तीसरे स्थान पे रहे। मेरे ख्याल से कुल मिलाकर के करीब 26 मेडल करीब हमारे आए होंगे। साथ ही साथ ये पहली बार है इतिहास के अंदर जबकि किसी भी स्टेट की एनसीसी से बच्चों ने नेशनल ओपन स्पोर्ट्स के अंदर 5 नए रिकॉर्ड स्थापित किए। 5 नए रिकॉर्ड स्थापित किए और बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर मेडल लिए हैं। और इसके अलावा इंटरनेशनल यूथ ओलंपिक दुबई के अंदर हुई। इंटरनेशनल यूथ ओलंपिक दुबई में जब हुई तो उसके अंदर
हमारे बच्चों को 1 गोल्ड मिला और 2 सिल्वर मिला। ये पहली बार इतिहास में हुआ है और किसी स्टेट में नहीं हुआ है। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मतलब चाहे किसी भी प्रकार का खेल हो उसके अंदर हमारे बच्चे अव्वल रहे। नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट, नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट, ये हम प्रोग्राम चलाते हैं, पिछले 1 साल से चला रहे हैं और पिछले 1 साल के अंदर हमने करीब 1 लाख बच्चों को इसमें प्रेरित किया है और अभी 1 हफ्ते के अंदर हम जो है और 1 लाख बच्चों को प्रेरित करने जा रहे हैं। क्योंकि आज के समय में अगर हम चाहते हैं कि हमारा भारत श्रेष्ठ भारत बने तो हर बच्चे को, हर व्यक्ति को हर काम में सोचना पड़ेगा कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो इतना अच्छा हो कि जिससे हमारा नेशन फर्स्ट हो और साथ ही साथ उसको करने का हमारा तरीका इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई उंगली ना उठा सके और एक चरित्रवान तरीके से किया जाए। क्योंकि आज के माहौल को अगर हम लोग देखते हैं तो चरित्र की नेतृत्व के अंदर विशेष आवश्यकता है। अभी तैयारी अपनी चल रही है और रिपब्लिक डे परेड के लिए जो है हम तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर जो रिपब्लिक डे परेड होगा हमको उम्मीद है कि हमारा गुजरात का रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा। हमारी वायुसेना की टीम चली गई है, नौसेना की टीम हमारी जा रही है और एक हमारा अभी नौसैनिक एक्सपेडिशन चल रहा है नर्मदा के अंदर, पिछले 7 दिन से चल रहा है और तो उसको 20 तारीख को ख़त्म होगा। બ્યુરો રિપોર્ટ આઇકોન ન્યૂઝ વિદ્યાનગર। હવે જોઈએ આજની પોલીસ ડાયરી। આણંદમાં રહેતા મુસ્તુફાભાઈ યુનિસભાઈ વોરા, જેઓના બંધ મકાનમાં કોઈ ચોરી સમયે ઘરના ઉપરના ભાગેથી નીચે ઉતરી બારીમાંથી ઘરમાં પ્રવેશ કરી ઘરમાં તિજોરીમાં મૂકેલા રૂપિયા 1 લાખની ચલણી નોટો લઈ જઈ ગુનો કરેલ છે। આ અંગેની ફરિયાદ મુસ્તુફાભાઈએ આણંદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવી છે। પેટલાદમાં રહેતા શારદાબેન બચુભાઈ રાણા, જેઓ પોતાના બચત ખાતામાંથી રૂપિયા 30,000 ઉપાડી થેલીમાં મૂકી ઘરે જતા હતા, તે દરમિયાન કોઈ અજાણ્યા મોટરસાયકલ ચાલકોએ શારદાબેનની થેલી લઈ જઈ ચોરી કરી ગુનો કરેલ છે। આ અંગેની ફરિયાદ શારદાબેને પેટલાદ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવી છે। તો મિત્રો, આજના સમાચાર અહીં સમાપ્ત કરીએ। આવતીકાલે ફરી મળીશું આ સમયે આ ચેનલ પર। ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર। Dun, dun, dun.